Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. First pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's in this particular video, let's take up a CAT problem as promised to one of the subscribers. So I don't plan to cover all the CAT papers LRDA, but yes, you can go ahead and tell me what are the sets in which you have a specific problem. We'll try to simplify that. For example, we have to cover that airline set from CAT 2018 or 17 for that matter. And this is basically from CAT 2017. This was a simple happiness index based set, right? So we'll cover good previous LRDI sets. Some I'll be covering on my own, others you can obviously request, right? And we'll not cover everything, as I said in the earlier part. We'll take good sets through which we'll be learning a bit of new logic. Right, let's start with this particular set. Let's read this. Let's try to understand what is given in this set. Let's understand the table and the bar graph. What do they mean specifically? What are they representing? And then let's start solving them. Now, what is given? Simple happiness index SHI. Simple happiness index SHI of a country is computed on the basis of three parameters: social support S, freedom to life choices, that is F, and corruption perception C. Each of these three parameters is measured on a scale of 0 to 8 integral values only. So the values that can be given are from 0 to 8, but all integral values, that is a scale on which each of these three parameters have to be rated. A country is then categorized based on the total score obtained by summing the scores of all the three parameters as shown in the following table. Right? Now, we have this table and the total score. On the basis of the total score, basically we are going ahead and categorizing. So total score could be from 0 to 4, 5 to 8, 9 to 13, 14 to 19, 20 to 24. So basically there is no overlap. That is perfectly obvious. And in these ranges, we are categorizing that particular country. For example, 0 to 4, if a rating of any country is lying between 0 to 4, both included obviously, the country will be categorized as very unhappy. Similarly, if a country has a rating from 9 to 13, in that range, if a country's happiness index is lying, we'll be categorizing that country as neutral. So this is perfectly simple, pretty straightforward. Now let's go ahead. This says following diagram depicts a frequency distribution. So we have to understand what is frequency distribution. The following diagram depicts the frequency distribution of the scores in S, F, and C of 10 countries. Amda, Benga, Kala, Delma, Epa, Versa, Wana, Zanda, Yanga, and Zuma. So perfectly normal names these are. So we'll be going ahead and just abbreviating them as A, B, C, D, E, V, W, X, Y, and Z. So these are the countries for us. So there are a total of what? 5 countries, right? And for each of these countries, the scores are given in the frequency distribution form. Now, what is frequency distribution? Let's try to understand that, and we'll be making out a table based on that exactly. Okay. Now, what does this frequency distribution mean? Right, color coding पे पहले इस bar graph में ध्यान देना. So this dark green is represented by S, light green is F, and this blue color is C, sky blue is C. For example, this one rating, या फिर आप कलर के थ्रू स्टार्ट करो. जैसे this dark green is S, right? That is the social support वाला category. So social support वाले category में one rating no country has gotten. इसका ये मतलब हुआ, बिकॉज यहाँ पे 1 में डार्क ग्रीन कलर है ही नहीं ना, दैट मीन्स विल बी टेकिंग दैट एज 0. सिमिलरली ये 2 रेटिंग, तो 2 रेटिंग भी आपका एस वाले पैरामीटर में किसी को भी नहीं मिला है. बट देन व्हेन इट कम्स टू दिस 3 रेटिंग ऑफ 3, तो ये सोशल सपोर्ट दैट इज डार्क ग्रीन, दैट इज एस, इज गिवन टू 3 कंट्रीज. तो 3 कंट्रीज को सोशल सपोर्ट में दिस एस वाले पैरामीटर पे 3 रेटिंग मिली है. देन 3 कंट्रीज को सोशल सपोर्ट दैट इज एस वाले पैरामीटर पे 4 रेटिंग मिली है. 5 वाली रेटिंग कितने कंट्रीज को मिला है? 2 कंट्रीज को मिला है. 6 वाला रेटिंग 1 कंट्री को, 7 वाला रेटिंग अगेन 1 कंट्री को. तो ऑल इन ऑल वी हैव व्हाट 10 कंट्रीज. तो किसी भी एक पैरामीटर में एक्चुअली में टोटल आपके स्कोर्स कितने मिल सकते हैं? 10 स्कोर्स मिल सकते हैं. तो आप इसको चेक कर सकते हो. ये आपको हेल्प करेगा टू गेट द आइडिया व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल अबाउट. अगर आपको जैसे लिटरल मीनिंग अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना, यू कैन यूज योर कॉमन सेंस, मे बी अ बिट ऑफ लॉजिक, यू विल बी एबल टू फिगर दिस आउट कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे मीनिंग क्या है, राइट? दैट इज अ मेजर चैलेंज आई वुड से जो इस पर्टिकुलर सेट का है.
इफ यू आर नॉट वेल वर्स विद व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे अगर मैं डार्क ग्रीन काउंट करूँ ना, तो डार्क ग्रीन की जितनी भी वैल्यूज मेंशन्ड है दे विल ऑल एड अप टू 10. नंबर ऑफ जो वैल्यूज आपकी है, जैसे रेटिंग की इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं है, रेटिंग कितनी बार मिला है, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द नंबर ऑफ टाइम समथिंग इज एक्चुअली अकरिंग. सो जैसे 3 रेटिंग 3 कंट्रीज को मिला, राइट, 4 कंट्रीज 3 रेटिंग, तो 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 + 1 is 10. And you can simply go ahead and do this for all the colors, that is S, F and C. You will get the same idea. I hope this part is clear. Okay, now we have some more information, and the information states like AMC, AMDA and Kala jointly have the lowest total score of 7, so their total score is given. The 3 parameters combined with identical score in all the 3 parameters. Zuma has a total score of 17. All the 3 countries are characterized as happy, so this 14 to 19 range, have the highest score in exactly 1 parameter. The statements are pretty straightforward. These are not very complicated statements. So the next part is basically solving this set. Now how do I start solving this? तो अब ऐसा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आमडा एंड काला का, ये तो बहुत 2 ही लोग के लिए दिया हुआ है, बाकी का जूमा का दिया हुआ है, और ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं. वी आर 10 कंट्रीज बट द यूनिक इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर ओनली 3 ऑफ द कंट्रीज. उनके लिए भी टोटल पता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता. हाउ इज दैट 7 मेड, हाउ इज दैट 17 मेड आफ्टर ऑल, and so वो डायरेक्टली आपको नहीं पता है. सो you'll have to use a bit of logic, and that is also obvious from these 2 questions also. That is, what is AMDA score in F, what is Zuma score in S. तो एक तो इसी स्टेटमेंट से फिगर आउट होगा, एक Zuma वाले से फिगर आउट होगा. देन Benga and Delma, these are 2 other countries, and if Benga scores 16 and Delma, this are revolving around the 2 other countries. So we'll have to start representing this, right? So what I'll firstly do is, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज एस वाले पैरामीटर्स में क्या क्या रेटिंग मिली है. आई विल गो अहेड एंड राइट ऑल दीज 10 वैल्यूज डाउन. राइट, आई विल गो अहेड एंड राइट ऑल दीज 10 वैल्यूज डाउन. एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं. देन विल स्टार्ट फिगरिंग आउट कि क्या करना है, किसका कौन सा वैल्यू किसको मिला. फॉर एग्जाम्पल, तो एस वाले में क्या क्या मिला, डार्क एस वाले ये हमने बोला था, तो 3 टाइम्स आपको 3 मिला है. आई विल गो अहेड एंड राइट 3, 3 एंड 3. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 3 रेटिंग 3 टाइम्स मिला. देन 4 वाली रेटिंग, 4 रेटिंग मेरे को कितनी बार मिला है, 3 बार मिला है. तो आई विल राइट 4, 4 एंड 4. 4 रेटिंग मेरे को 3 टाइम्स मिला. देन 5 वाली रेटिंग 2 टाइम्स मिला, सो 2 बार आपका 5 आ जाएगा, एक बार 6 आ जाएगा और एक बार 7 आ जाएगा. 6 एंड 7. Right, I'll do the same thing for F and C categories as well. तो F is this light green. Light green में क्या हो गया, 1 rating 2 times, so 1 rating is 2 times. Then 2 rating 1 time, so एक बार आपका 2 आएगा. 3 कितनी बार आएगा, 2 times आएगा, तो 3 आपका 2 times आएगा. 3 2 times. Then 4 will be 1 time. Then 5 will be 3 times. So 5, 5 and 5, ideally only 1 value should be left. और देखो यहाँ पे मिसिंग है, 7 वाला 1 टाइम है, तो ये परफेक्टली सही बैठ जाएगा. कहीं भी आप गलती करोगे ना तो मिसमैच हो जाएगा, इधर वो स्पेस कम रह जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इफ यू आर इंटरप्रेटिंग इट रॉन्ग, राइट. सो मल्टीपल वेज टू जज आर वी डूइंग दिस करेक्टली और नॉट. देन सी वाला रेटिंग, सॉरी सी पे आपकी रेटिंग्स क्या है, ब्लू वाला कलर, तो 1 रेटिंग 1 टाइम. देन 2 वाली रेटिंग 3 टाइम्स, सो 2, 2 एंड 2. Then 3 वाली रेटिंग 4 times, 3, 3, 3 and 3. 3 is 4 times. Then 4 वाली रेटिंग 1 time, so only 1 time is 4. So एक ही वैल्यू आनी चाहिए. इसमें ब्लू नहीं है, इसमें ब्लू. 6 is 1 time and that's all. 7 वाली रेटिंग S में, C में कभी भी नहीं मिली. So we have represented what are the different scores possible. Now let's move forward and start solving this set. So basically we cannot do much about it. We can read the statements and we can solve problems, right? जैसे if you look at the first problem itself, what is AMDA score in F? तो F में AMDA को कितना मिला है? We cannot directly say कि क्या मिला है. So for that we need this first statement. Let's read this and let's try to interpret this. What does this mean? So what is the first statement? AMDA and Kala, there are 2 people, there are 2 countries, AMDA and Kala, A and C. They jointly have the lowest total score of 7. तो अपने को क्या बनाना है? 7 बनाना है. अब 7 क्या है, 3 पैरामीटर्स पे जो स्कोर है उनसे है. लेकिन पॉइंट ये है कि दोनों ही कंट्रीज को 7 मिला है विद आइडेंटिकल स्कोर इन ऑल द 3 पैरामीटर्स. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि AMDA को S, F एंड C इन दैट ऑर्डर, अगर इसको A, B एंड C मिला, तीनों का एडअप करके 7 आ रहा है, तो काला का भी तीनों में
A, B एंड C ही होना चाहिए। तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल स्कोर्स भी होने चाहिए एंड तीनों ऑब्वियसली एड अप करके सेम तो आएंगे, राइट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो यहाँ पे आपको चेक करके चलना है कि तीनों पैरामीटर में सेम आना चाहिए दोनों ही कंट्रीज का, और ऑब्वियसली एड अप करके तो आपका 7 बनना ही है। तो अब पहले आप ऐसे सोचना स्टार्ट करोगे आप 7 बना कैसे सकते हो। तो जैसे एस वाले पैरामीटर में से आप नोटिस करो तो लीस्ट वैल्यू आप क्या पिक कर सकते हो यहाँ पे 3, ठीक है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का फायदा भी यही था कि मेरे को दिख रहा है कि लीस्ट वैल्यू क्या है। अब रैंडम ऑर्डर में लिखा होता मे बी वुड हैव मिस्ड आउट, ठीक है, बट सोचने में टाइम जाता, वी वुडंट रियली हैव मिस्ड आउट, बट ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करके चल रहे हैं। तो एस को कितना मिला यहाँ पे 3 मिला, लेट्स से 3 से अगर हम बनाना स्टार्ट करें, सो इफ आई पिक 3 फ्रॉम दिस एस, तो अब यहां से क्या क्या मैं ले सकता हूं। तो यहां से नोटिस करो मैं जैसे 1 अगर लिया, जैसे 3 के साथ इधर 1 लिया, तो ऐसी ही वैल्यूज मैं पिक कर रहा हूं जो 2 बार एटलीस्ट आ रही है, तभी मैं दोनों कंट्रीज को उस पैरामीटर पे सेम वैल्यू दे पाऊंगा, तभी तीनों में आइडेंटिकल बनेगा। तो 3 and 1 बोला मैंने। अच्छा अभी 7 बनना है तो आई नीड अ व्हाट, 3 + 1 4 हो गया, आई नीड अ 3 यहाँ पे 2 बार है, यस चलेगा, मेरे को सी में 2 बार 3 आ रहा है, तो दैट इज 1 पॉसिबिलिटी की 3 1 3 से मैंने बना लिया। अच्छा दिस इज 1 पॉसिबिलिटी। डू आई हैव अदर पॉसिबिलिटीज? तो 3 के साथ अगर मैं यहाँ पे 1 पिक नहीं करता, लेट्स से इसी को फिक्स रख के 3 को फिक्स रख के अगर मैं 3 फिक्स करता, एफ में से अगर 1 नहीं पिक करता तो मे बी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में 2 पे जाता, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 आपका 2 टाइम्स है ही नहीं, तो 2 नहीं उठा सकते थे, एटलीस्ट 2 बार होना चाहिए। देन 3 के साथ फिर मैं इस सेकंड वाले में से 3 उठा सकता हूँ बिकॉज इट इज एक्चुअली देयर 2 टाइम्स। तो 3 के साथ 3 उठा लिया, मान लो 2 3 है चलेगा, बट 3 + 3 और टोटल 7 बनना है, तो फिर थर्ड वाले पैरामीटर सी में से कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, बट दोनों कंट्रीज को आपको 1 देना पड़ेगा, बट देन देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन कि सी में अल्टीमेटली आपका 1 ही टाइम है, तो मतलब 3 के साथ 3 नहीं उठा सकते बिकॉज यहाँ पे 1 एक ही बार है। अच्छा नेक्स्ट 3 के साथ क्या यहाँ पे 4 उठा सकते हो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि 4 अल्टीमेटली आपका एक ही बार है। ऑल्सो अगर 2 बार पॉसिबल होता भी, 2 बार अगर 4 होता भी, तो 3 + 4 ऑलरेडी एडअप करके 7 आ गया, तो यहाँ पे किसी को भी 0 तो मिला ही नहीं है, राइट, 0 नहीं मिला है यहाँ पे भी कोई भी स्कोर, तो पॉसिबल नहीं है। तो 3 यहां से स्टार्टिंग में 3 फिक्स करके एक ही पॉसिबिलिटी बनी, जाते 3 1 and 3, बस यही चेक करना है आपको, राइट। डू हैव अदर केसेस? तो अब 3 के बाद मैं 4 पे चलना स्टार्ट करता हूं। लेट्स से मैंने यहाँ पे 3 की जगह 4 से स्टार्ट किया, नाउ आई कैन गेट 2 4s, यस परफेक्टली फाइन। अब 4 के साथ अगेन 2 तो मैं उठा नहीं पाऊंगा, देखो 3 भी नहीं उठेगा, 3 भी क्योंकि अगर आप उठा भी लेते हो तो 4 + 3 7 बन जाएगा, तो यहाँ पे तो 0 चाहिए होगा, 0 है नहीं, तो 4 के साथ 3 तो डेफिनेटली नहीं आएगा। तो अगर आना है 4 के साथ किसी को तो 1 को ही आना पड़ेगा, तो 4 + 1 2 बार 1 है चलेगा, 4 + 1 is 5 और 2 बार 2 भी है ताकि 7 बन जाए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 1 and 2, बिकॉज दीज रेटिंग्स आर एक्चुअली देयर 2 टाइम्स, 4 1 2 की भी एक पॉसिबिलिटी है। सो टू मेक दैट टोटल स्कोर ऑफ 7 विद आइडेंटिकल स्कोर्स इन ऑल द 3 पैरामीटर्स, वी हैव 2 possibilities. Either the 2 countries will get 3 1 3 respectively, or the 2 countries will get 4 1 2 respectively in the 3 categories. Now, do I have any other possible case? I don't think so, because अगर मैं 5 उठा भी लेता हूँ तो 5 के बाद यहाँ से 1 आएगा, 5 + 1, तो फिर यहाँ 2 1 नहीं है, 5 के बाद 2 अब है ही नहीं, तो फिर वो ऊपर जाने लग जाएगा 7 से। So these are the only 2 possibilities which we have. Now we can go ahead and solve the first problem. What is AMDA score in F? तो AMDA का स्कोर F में बता सकते हैं बिकॉज ये कौन सी कैटेगरीज है, S, F and C। अब बाकी में अगर पूछा होता, S में पूछा होता या C में पूछा होता, सो यू वुड हैव रिक्वायर्ड सम एडिशनल कंडीशन ऑल्सो कि भाई इसमें से कौन सा केस पिक करेंगे, या फिर हम आंसर CVD बोल रहे होते, बट जस्ट बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली आस्क्ड फॉर दिस पैरामीटर F, so we can go ahead and say the answer to the first problem is 1 and there is 3 marks for you, right? I hope this is clear. Okay, now let's move on to the next problem. So what is Zuma's score in S? So we'll have to focus on Zuma. Now Zuma is one of the countries which is actually given. So let's read the second statement, a very small statement. Zuma has a total score of 17. Now this is very important कि Zuma का जो total score है, Zuma का total score है 17, so we'll have to add up 3 values to 17. Also Zuma का टोटल स्कोर अगर आप 17 चेक करो किस रेंज में लाई करता है, तो वो इस रेंज का पार्ट है। हैप्पी आर कंट्रीज विच हैव अ रेंज ऑफ टोटल स्कोर्स फ्रॉम 14 to 19, so we can conclude कि Zuma is a happy country. Now the third point now links this, all the 3 countries which are characterized as happy. Now we know from this third statement that basically 3 countries which are characterized as happy, that means they have total score in the range of 14 to 19, and Zuma has that particular value in that range,
That means out of these three countries, Zuma is one of those countries. Now, for these countries which are characterized as happy, out of which one is Zuma, all the three countries which are characterized as happy have the highest score in exactly one parameter. Now, this sets a condition. What condition does it set? कि तीनों ही पैरामीटर में those countries which are characterized as happy, they cannot have the highest score. That means, जैसे अब समझना, why are we focusing on that highest score? Because जो ये टोटल है 17, ये काफी बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यूज ऐड करके तो नहीं आएगी. अगर आप इधर की वैल्यूज देखो तो ये तो बहुत नीचे रहेगी ना. सो इट हैज टू डू समवेयर अराउंड एट द एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम बोले तो यहाँ पर रेंज ऑफ स्कोर्स, तो एंड में आपका कहीं ना कहीं 17 बनेगा. अब इसने ये बोला एक्चुअली में कि जो हैप्पी वाली कंट्रीज है ना, उनका हाईएस्ट स्कोर किसी एक ही पैरामीटर में आ पाएगा. जैसे यहां से अगर तुमने, जैसे मान लो जुमा का तुमने अगर यहां से 7 उठाया, ये 7 आया, तो अब मैं F और C कैटेगरी में 7 और 6 नहीं उठा सकता. दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि अगर यहां S से तुमने 7 उठाया तो मैक्सिमम पॉसिबल आप F से जो स्कोर उठा सकते हो दैट कुड बी 5. मैक्सिमम पॉसिबल उठेगा क्या, वी डोंट नो दैट, बट 7 अगर यहां मैक्सिमम पिक हो गया है तो वी कैन नॉट पिक अ 7 फ्रॉम हियर, सो मैक्सिमम यहां से 5 पिक कर सकते हो उस कंट्री का. एंड सिमिलरली फॉर दैट कैटेगरी C, यहां से 6 नहीं पिक कर सकते हो, यहां से क्या आ सकता है, 4 आ सकता है. राइट. सो टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम मैं क्या करता हूं ना, मैं थोड़ा एंड में फोकस करता हूं कि क्या मेरा बन रहा है, व्हाट इज जुमा स्कोर इन एस. तो पहले अगर मैं चेक करूं 17 बनेगा कैसे, तो एक चीज समझना, क्यों मैं कह रहा हूं कि इसमें से कोई एक स्कोर होगा ही होगा. क्यों होगा, इसका रीजन मेरा क्या है. अगर मैंने हाईएस्ट में से एक भी स्कोर नहीं उठाया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऐसा मैं जो सोल्यूशन आपको बोलने वाला हूं ऐसा ही मैं क्यों कर रहा हूं. सो अगर मैंने हाईएस्ट में से एक भी वैल्यू नहीं उठाई, 7, 7, 6 में से एक भी वैल्यू नहीं उठाई, then the maximum possible sum I could make out of S, F and C would be this 6 plus 5 plus 4. अगर मैंने एक भी वैल्यू यहां से नहीं उठाई तो मैक्सिमम सम मेरा कितना बन सकता है, 6 plus 5 plus 4 that is 15. 15 तो मेरा नहीं है ना, मेरा तो 17 है. And hence I am concluding I'll have to pick one value from the highest value. And then that statement becomes relevant कि आप highest में से एक वैल्यू उठा लियो तो अब बाकी में से नेक्स्ट हाईएस्ट उठा सकते हो. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल चेक क्या एक हाईएस्ट कौन सा पिक करेंगे. अब उसके भी 3 पॉसिबिलिटीज है, बट एक हाईएस्ट पिक करके व्हाट आर द अदर पॉसिबल टोटल सम्स दैट आई कुड मेक. तो अब 17 के साथ चेक करते हैं. लेट्स से मैंने यहां से सबसे पहले 7 उठाया. आई विल टेक द फर्स्ट केस, जैसे मैंने 7 उठाया, तो आई एम राइटिंग इन दैट ऑर्डर S, F एंड C, S, F एंड C. तो अगर सपोज मैंने क्या करा, S में से 7 उठाया, तो अब मैं यहां से 7 एंड 6 नहीं उठा सकता हूं. सो मैं मैक्सिमम सम कितना बना सकता हूं, 5 एंड 4 लेके. तो 7, 5 एंड 4. बट अगर आप नोटिस करो, अगर आपने 7 लिया तो आप मैक्स टू मैक्स सम ही कितना बना पाओगे, 7 प्लस 9. 7 प्लस 9 इज 16, तो मेरा 17 तो पहुंचा ही नहीं. सो दैट मीन्स दिस केस इज नॉट पॉसिबल फॉर जुमा. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. देन लेट्स मूव ऑन, लेट्स टेक द अदर केस. इफ आई टेक माई मैक्सिमम फ्रॉम दिस F वाला कैटेगरी, दिस 7, तो अगर मिडिल से मैंने मैक्सिमम उठाया, देन मैं ये 7 ये 6 नहीं उठा सकता. देन द मैक्सिमम आई कुड पिक इज दिस 6 एंड दिस 4. तो 6 एंड 4 उठाया इन दैट ऑर्डर, 6 एंड 4. नाउ इफ आई नोटिस माई टोटल सम एक्चुअली बिकम्स इक्वल टू 17. तो मतलब मैक्सिमम पॉसिबल पे ही 17 बन रहा है अगर मैं ये 7 उठा रहा हूं. तो अब मैं बोल सकता हूं कि मतलब यही मेरा स्पेसिफिक केस रिक्वायर्ड भी होगा. अगर मैंने यही 7 उठाया तो इसका हाईएस्ट और इसका हाईएस्ट ही मैक्सिमम सम जो बना सकता था वही आपका बन भी रहा है. तो आई डोंट नीड टू वरी. बट देन देयर इज दिस थर्ड पॉसिबल केस एज वेल. चेक करना पड़ेगा पहले टू बी कंक्लूसिव अबाउट दिस प्रॉब्लम. व्हाट इफ आई टेक दैट मैक्सिमम एज 6. तो थर्ड पैरामीटर से अगर मैंने 6 उठाया तो क्या होगा. तो इफ आई पिक अ 6 फ्रॉम हियर, मैक्सिमम मैं दोनों से क्या उठा सकता हूं, 6 एंड 5. नाउ मैक्सिमम पॉसिबल मेरा सम बनेगा जब 6, 6 एंड 6, 5 एंड 6 उठाया, ये वाला मैक्सिमम, एंड दैट ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी 70. नाउ दीज आर द ओनली 2 ways I can go ahead and make my 17, and I'll be very sure कि there is no other possibilities, because आपने जो कॉम्बिनेशन 17 के लिए बनाया है, बेसिकली आपने वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज उठा के बनाया है. इफ मैक्सिमम वैल्यूज अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो आई विल गो डाउन. बट इफ आई गो डाउन आई टेक माई टोटल स्कोर ऑल्सो डाउन, तो मेरा टोटल स्कोर भी कम होने लगेगा. तो मैक्सिमम ही अगर आपका वो सेटिस्फाई करके दे रहा है, दैट मीन्स वही आपके 2 पॉसिबल केसेस है. नाउ द प्रॉब्लम इज,
अगेन जैसा कि पहला प्रॉब्लम था आमडा स्कोर इन एफ, उसके तो दो पॉसिबल केसेस थे, तो ये थीटा प्रॉब्लम कैसे हुआ? बिकॉज इफ यू लुक व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज ज़ूमा स्कोर इन एस, तो ज़ूमा का एस में स्कोर एक्चुअली क्या है? यूनिक है, डजंट डिपेंड ऑन द टू कैटेगरीज, बिकॉज दोनों में बाकी के चेंजेस हो रहे हैं। ज़ूमा का जो आपका एस में स्कोर आ रहा है, इट इज एक्चुअली fixed, and that is 6, and hence our answer to the second problem becomes 6. I hope this part is clear. Now let's look at the third problem. Benga and Delma, BND, two countries categorized as happy are tied with the same total score. What is the maximum score they can have? Now let's proceed in this problem very logically, and you will be able to answer this problem within seconds. देखो, बेंगा एंड डेल्मा टू कंट्रीज कैरेक्टराइज एज हैप्पी, कंडीशन दिया हुआ है. ऑल्सो देयर वाज दिस कंडीशन, ऑल द थ्री कंट्रीज विच आर कैरेक्टराइज एज हैप्पी, राइट? आई हैव टू रीड दिस, बैकवर्ड जाना है. देयर आर थ्री कंट्रीज विच आर एक्चुअली हैप्पी, ये स्पेसिफाई कर दिया था उन्होंने मेन स्टेटमेंट में. आउट ऑफ दोस थ्री कंट्रीज जुमा वॉज वन ऑफ देम, जुमा इज एक्चुअली वन ऑफ देम विद अ टोटल स्कोर ऑफ 70. ये क्वेश्चन आपको बोल देता है कि बेंगा एंड डेल्मा टू कंट्रीज कैरेक्टराइज एज हैप्पी आर टाइड विद द सेम टोटल स्कोर, सेम टोटल स्कोर. तो बेंगा भी हैप्पी है, डेल्मा भी हैप्पी है, बट दोनों का स्कोर क्या होना चाहिए? आपका सेम होना चाहिए. तो जो कंडीशन हमने इसके लिए जुमा के लिए अभी चेक करा, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर अ कंट्री विच इज कैरेक्टराइज एज हैप्पी कैन हैव? मैक्सिमम, ये एक्चुअली मैंने तो सोच के देखो तो मैक्सिमम ही चेक किया ना आपने. इसमें मैक्सिमम उठाया तो इधर का मैक्सिमम उठाया, ये 7 आया तो ये 7, 6 and 4 मैक्सिमम आया, ये 6 उठाया अगर किसी का तो ये 6 and 5 उठाया, राइट? तो ये कंट्रीज है, ठीक है. तो मैक्सिमम आपको करना है तो आप मैक्सिमम वैल्यूज उठाना चाहोगे, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि इसमें से आपको वैल्यू उठाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नहीं उठाओगे तो आप मैक्स टू मैक्स कितना बना पाओगे? 6 + 5 + 4 15 ही बन पाएगा. तो हम मैक्सिमम करना चाहेंगे तो इनमें से स्कोर्स उठाएंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ दिस आई एम व्हाट आई एम सेइंग कि यही तीन कंट्रीज हैं आपके, और सोच के देखोगे तो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर जो आपका जा सकता है वो यही है. यहां से अगर आप नोटिस करो तो 7 + 5 + 4, इसमें कितना बोला था आपने? 16 बोला था, राइट? इसका आपने 16 बोला था. और अगर ये दो पॉसिबिलिटीज है तो आपका टोटल स्कोर कितना आ रहा था? दोनों का ही 17 आ रहा था. नाउ आपको क्वेश्चन में क्या करना है, ये दोनों हैप्पी कंट्रीज जो है इनका जो मैक्सिमम जो स्कोर है वो आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है. नाउ द प्रॉब्लम इज 17 बनने का ना दो ही तरीका पॉसिबल था. एक तो ये वाला सेकंड मेथड एंड द थर्ड मेथड. 17 बनाने का दो ही पॉसिबल तरीका था. दोनों कंट्रीज को मैं 17 बनाने नहीं दे सकता. क्यों नहीं बनाने दे सकता? बिकॉज वन ऑफ दो 17 हैज टू बी मेड बाई जुमा. जुमा का इनमें से एक 17 तो फिक्स है. अब वो कौन से वाले वैरायटी से बन रहा है वो ये नहीं पता, सेकंड वाले से बन रहा है या थर्ड वाले से बन रहा है, बट एक 17 का जो तरीका है वो तो जुमा लेके गया. दैट मीन्स एक ही 17 का तरीका बचा, बट बी एंड डी का तो स्कोर क्या होना चाहिए? आपका सेम होना चाहिए. तो दोनों को मैं 17 नहीं बना सकता, राइट? व्हाट अबाउट 16? 16 में भी अगर आप नोटिस करोगे ना, 16 बनने का आपका एक ही तरीका बन के आ रहा है, 7, 5 and 4. आप अगर इनमें से मैक्सिमम नहीं उठाए तो आपका मैक्सिमम सम आपने नोटिस करा होगा 15 ही बना, जब आप 6, 5 and 4 में भी उठा लो. और भी तरीके हैं 15 बनने के, बट दैट इज द नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोर जो बन सकता है अगर आप हाईएस्ट नहीं उठाते हो तो, ठीक है? एक भी हाईएस्ट नहीं उठाते हो, और दो हाईएस्ट तो वैसे भी अलाउड नहीं है. तो 7, 5 and 4 से 16 बनेगा, बट द अगेन प्रॉब्लम इज 16 बनने का भी सिर्फ एक ही तरीका है, बट दोनों कंट्रीज को तो सेम बनाना है. तो अगेन मैं बोल सकता हूं कि 16 नहीं बनेगा. तो मेरा नेक्स्ट जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है ना, बस वही आपका आंसर भी हो जाएगा. अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि कैसे क्या बनना है. आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए ढूंढ सकते हो, ढूंढना भी चाहिए, बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगने वाला है. मैं बोल रहा हूं कि 16 के बाद मेरे को दिख रहा है बहुत सारे तरीके हैं इसमें 15 बनाने के. तो 15 बनने के बस मेरे को ये चेक करना है कि मेरे को मिनिमम 2 तरीके मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे. बिकॉज 16 बन नहीं सकता, 17 बन नहीं सकता, उससे ऊपर जा ही नहीं सकता हैप्पी कंट्री का स्कोर. तो मैक्सिमाइज करना है तो मैं किस पे मैक्सिमाइज कर दूंगा? 15 पे. तो मैं बोल दे रहा हूं डायरेक्टली इस प्रॉब्लम का आंसर भी कितना आने वाला है? 15 आने वाला है. नाउ इफ यू वांट तो हम चेक कर सकते हैं, बस ये याद रखना कि तीनों का हमें ये सैटिस्फाइड रखना पड़ेगा. तो जुमा का 17 मान लो आपने 6, 7, 4 से बना दिया. एक पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, यू कैन गो अहेड एंड फिगर आउट अदर पॉसिबिलिटीज एज वेल, बट स्कोर सेम रहने वाला है. तो मैं लेट से मैंने जुमा का इससे बनाया 6, 7 and 4, ये तीन वैल्यूज जुमा ने ऑक्यूपाई कर ली. अब फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ बेंगा या डेल्मा, किसी एक को भी ले लो. इसका मैं बोल रहा हूँ 15 बनना है दोनों का, राइट? तो एक 15 मैं बोल सकता हूँ, जैसे मान लो यहाँ से 7 उठा लिया, 7 फिर 3 and 5 8, यस. तो 7 के बाद 5, इसके बाद 3, एक ये पॉसिबिलिटी 15 बनने की. मुझे और भी पॉसिबिलिटीज इसमें जैसे दिख रही है, जैसे कि
अगर मैं यहाँ से 6 उठा लूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से 6 उठा लूँ तो यहाँ से मैं 5 उठा लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? 11 हो गया। 11 के बाद 15 बनने के लिए क्या चाहिए आपको? 4 चाहिए। आप यहाँ पे 4 बहुत सारे अवेलेबल देख रहे हो, तो इसमें से मैंने 4 उठा लिया। दैट मीन्स आई कैन सिंपली गो अहेड एंड मेक 15 2 टाइम्स। 16 बन नहीं सकता, 17 नहीं बन सकता, एंड दैट इज द होल आइडिया टू दिस प्रॉब्लम. I hope this part is clear. So the answer to the third problem is actually 15. Now let's go ahead with the final problem. If Benga scores 16 and Delma scores 15. अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है. So I'll just remove this. Right. If Benga scores 16, इसका 16 फिक्स है. Zuma का ऑलरेडी फिक्स था 17. That was given in the problem. And Delma scores 15. इसका 15 फिक्स्ड है. Then what is the maximum number of countries with a total score of 13? So मेरे को number of countries maximize करने हैं with a total score of 13. हाउ डू आई प्रोसीड इन दिस? देखो सबसे पहले देर आर टोटल ऑफ 10 कंट्रीज. अब मैं बैठ के देखो बाकी सारे कंट्रीज का मैं कॉम्बिनेशन तो नहीं बना सकता. दैट इज वेरी टीडियस. सो आई हैव टू फिगर आउट अ वे दैट इज ईजी एंड थोड़ा इंट्यूटिव होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम जब आप वर्ड सुनते हो ना तो आप सारे कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हो, आप एक रेंज के अराउंड सोचना स्टार्ट करते हो. व्हाट कुड बी देयर मैक्सिमम वैल्यू, देयर व्हाट कुड बी देयर मिनिमम वैल्यू. जैसे एवरेजेस के प्रॉब्लम में आप मैक्सिमम मिनिमम देखते हो, जैसे 10 लोग का एवरेज इतना है, बाकी का एक कंडीशन सेट कर रखा है, तो व्हाट कुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द लास्ट पर्सन. तो किसी एक को मिनिमाइज करना है तो आप बाकी को मैक्सिमाइज करते हो, किसी को मैक्सिमाइज करना है तो आप बाकी को मिनिमाइज करते हो. तो नॉर्मली व्हेन आई हियर दिस थॉट कि मेरे को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है इस तरीके से स्कोर्स वगैरह में, तो आई थिंक अलोंग दीज डायरेक्शंस कि क्या बाकी को मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ. तो इन दिस प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे यही करना चाहिए. जैसे सबसे पहली चीज, ओवरऑल सिनेरियो अगर आप देखो, अब किसको क्या मिला है, कौन सा स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन है, मुझे कोई आइडिया नहीं है. बट ऑल दीज 10 कंट्रीज, इनको जितना ये मतलब जितने भी वैल्यूज असाइन हुए हैं, ऑल दीज थ्री वैल्यूज सब मिला के सब टोटल ओवरऑल अगर मैं एडिशन कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा जैसे कि किसी भी ऑर्डर में किसका है क्या है, बट द टोटल स्कोर ऑफ ऑल दीज 10 कंट्रीज, वो ये सारी वैल्यूज ऐड करके मिल जाना चाहिए. किसको क्या मिला फिर मैटर नहीं करता ना, बिकॉज सारी कंट्रीज का मैं टोटल देखना चाहता हूँ. तो बस मैं ऐड कर लेता हूँ जल्दी से. तो 3 + 1 + 1, 3 + 2 5, 6 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, देन 2 3 4 दैट इज 9, देन 6 + 4 10, then 8 + 3 11, 5 + 3 that is 13, then 5 5 3 that is 13 again, then 6 5 15, then 7 7 14, 14 and 6 that is 20. Now let's add all these. इसको ऐसे ऐड कर लेते हैं. 5 6 7 9, 5 6 7 9 कितना बन जाएगा? 11 11 and 9 is 20, 27 ये बन गया. फिर 10 10 10 10 10 और 20 इसको ऐड कर लेते हैं. 2 3 4 5 6 7 70 और बन गया. और इसके बाद यूनिट डिजिट कितना हो गया? 5 + 3 8, 8 + 4, 8 + 4 is 12. तो ये सब कुछ ऐड अप करके कितना बन गया आपका? 27 + 70 + 12, ये 7 8 9 10 100 ये बन गया. और 7 + 2 is 9. So everything adds up to 109. Now, because I have the total score, तो मेरे पास ना कुछ कंट्रीज का स्पेसिफिक टोटल भी पता है. जैसे कुछ कंट्रीज का आपको डायरेक्टली दिया हुआ था, जैसे आमडा एंड काला का भी दिया था और बाकी इन 3 कंट्रीज का भी दिया था. तो आमडा एंड काला इनका भी टोटल स्कोर कितना है? 7 and 7. तो एटलीस्ट मैं सब कुछ अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता. जैसे ये 5 कंट्रीज का तो फिक्स वैल्यू है, रिमेनिंग का मेरे को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो उसी के अराउंड सोचेंगे. तो जैसे ओवरऑल 109 आपका टोटल स्कोर है ऑफ ऑल द 10 कंट्रीज. इन 5 कंट्रीज का टोटल कितना आ जाएगा? इसको ऐड कर लेते हैं. 7 + 7 14, 14 + 16, 14 + 16 is 30, और 17 + 15 is 32. तो इन 5 कंट्रीज का एडअप करके कितना आ रहा है? 62. तो आउट ऑफ दिस 109 अगर मैं 62 सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे को रिमेनिंग 5 कंट्रीज का टोटल मिल जाएगा. अब 9 - 2 वुड बी 7 and 47. तो देखो अब समझना, 5 कंट्रीज का आपका टोटल स्कोर अभी बनाना बाकी है. इन सब का एडिशन कितना होना चाहिए? फिक्स्ड 47. ये आप चेंज नहीं कर सकते हो. तो बिकॉज बाकी का फिक्स है, अब मैं बस यही करना चाहता हूं कि मैक्सिमम में कितने कंट्रीज रख सकता हूं विद अ टोटल स्कोर ऑफ 13. ठीक है, यही मेरे को ध्यान देना पड़ेगा.
along with other conditions obviously. Other conditions यहाँ पे पता है क्या है, ये ANC AMDA एंड काला jointly have the lowest total score, मतलब अब मेरा 7 या 7 से नीचे किसी भी कंट्री का नहीं होना चाहिए, बिकॉज स्पेसिफिकली बोला है have the lowest total score, और किसी कंट्री का 7 नहीं है और बाकी किसी कंट्री का 7 से नीचे भी नहीं होना चाहिए. सो इसी को चेक करना स्टार्ट करते हैं. अब जैसे 47 मेरे को 5 नंबर से बनाना है, क्या मैं पांचों वैल्यूज को 13 बना सकता हूं? डेफिनेटली नो, क्योंकि 13 13 अगर आप 5 टाइम्स रखते हो, राइट, 13 5 65 हो जाएगा, 47 नहीं बन पाएगा. देन आई विल चेक कि क्या मैं 13 13 13 13 चार बार रख सकता हूँ. इफ आई लेट से 13 13 13 13 रखता हूँ तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी, यही AMDA एंड काला वाला कंडीशन. क्या 13 इंटू 4 इज वॉट 52. 52 अगर बन गया तो ये तो प्रॉब्लम आ जाएगा, 47 बन ही नहीं पाएगा, तो 13 को मैं 4 टाइम्स भी नहीं कर सकता हूँ. देन 13 अगर मेरा 3 टाइम्स आया, आप समझना 13 अगर मेरा 3 टाइम्स आया तो ये कितना बन जाएगा 39. 47 माइनस 39, 47 माइनस 39 कितना बचेगा फिर आपका 8 बचेगा, राइट. 39 प्लस 8, ये जो रिमेनिंग दो कंट्रीज है इनका एडअप करके आपका 8 आएगा, तभी एडअप करके 47 बनेगा. अब प्रॉब्लम इज 8 आप बना ही नहीं सकते. दो कंट्रीज का टोटल आप कैसे बनाओगे? आपको छोटे वैल्यूज लेने पड़ेंगे, और 8 जब ब्रेक डाउन करोगे तो आपका कंडीशन कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा ना दोनों कंट्रीज का. फिर आपका क्या हो जाएगा, जो टोटल स्कोर है वो आपका AMDA और काला से क्या आने लग जाएगा, नीचे आ जाएगा. 7 से डेफिनेटली नीचे आएगा. दैट मीन्स आई कैन कंक्लूड कि क्या है, 3 13 नहीं ले सकता मैं. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि मैं 3 13 नहीं ले सकता. तो अगेन आई विल गो हेड एंड रिमूव वन ऑफ दीज 13. अब मैं चेक करना स्टार्ट करूं कि क्या मैं 2 13 से बना सकता हूं. तो अगर मैं 2 13 रखता हूं तो कितना बन गया आपका 26. नाउ 47 माइनस 26 कितना बचेगा 21. अब ऐसे समझना 2 13 है तो बचे 3 वैल्यूज से क्या मैं 21 बना सकता हूं, ये चेक करना पड़ेगा अब अपने को. तो अब समझना ये जो तीनों वैल्यूज है ये एटलीस्ट कितने होने चाहिए, इतने होने चाहिए ना कि 7 से बड़े हो. तो अगर आप एटलीस्ट 8 की भी बात करते हो और मान लो 8 से तीनों का सेम भी है, 7 से ऊपर होना चाहिए, तो एटलीस्ट 8 8 8 तीनों को देना पड़ेगा ना. तब भी इन तीनों का एडअप करके कितना आएगा 24 आएगा, बट 21 ही बचा है. दैट मीन्स फिर से कॉन्ट्रडिक्शन है. दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि दो कंट्रीज को भी आप 13 नहीं दे सकते हो. आप मैक्स टू मैक्स, अब मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये परफेक्टली फिट हो जाएगा, आप मैक्स टू मैक्स एक ही कंट्री का टोटल स्कोर क्या बना पाओगे 13 बना पाओगे. तो 13 आप किसी एक कंट्री को दे दोगे, 47 माइनस 13 कितना बचेगा 34. और अगर मैं मिनिमम की कंडीशन देखूं तो मिनिमम 7 से ऊपर फिर आपका 8 जाएगा, और 4 कंट्रीज को अगर मैं 8 देता हूं, लेट्स से मिनिमम की कंडीशन 4 8 32 हुआ, 34 बनाना है तो दो वैल्यू अभी भी आप असाइन कर सकते हो. अब वो क्या कैसे किसका असाइन होगा दैट इज नॉट नीडेड, मुझे उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट. आई कैन गो एड एंड सिंपली से कि मेरा 13 इज पॉसिबल ओनली फॉर वन ऑफ दीज कंट्रीज, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. दे आर मल्टीपल सॉल्यूशंस available. That is one solution which I applied during the exam. 17 was one of the papers which I actually wrote. Right. So basically I went ahead and did this. मुझे यहाँ पे समझ में आया कि मैं कॉम्बिनेशन बनाने बैठूंगा तो that would turn very problematic. इसकी भी मुझे टेंशन नहीं पड़ेगी मैं ये 16 और ये 15 बनाऊं कैसे. अगर आप उस चक्कर में फंस गए तो फिर तो लंबा हो जाएगा, तो उसकी मैं हेडेक नहीं लेना चाहता हूँ. बस मैं एक को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ. तो 5 का फिक्स था, टोटल मेरा फिक्स्ड है, तो मुझे ये मैक्सिमाइज करना है कि नंबर ऑफ कंट्रीज 13 कितने हैं. दैट कैन बी डन इन दिस पर्टिकुलर वे, right. So I hope you understood this set. If again you have any doubts, you can just put that in the comments.